Hello, my friends. My name is Dinesh Kumar, and you are watching my channel Business Adda 244. So, today's course is Introduction to Business. So, let's start. Have you ever wondered what the billionaire Warren Buffett, visionary Steve Jobs, and entrepreneur Jeff Bezos have in common? After you finish studying business practices in this course, you may discover you have many of these same qualities. क्या आपने कभी सोचा है कि अरबपति वारन बफेट, दूरदर्शी स्टीव जॉब्स और उद्यमी जेफ बेजोस में क्या समानता है? इस पाठ्यक्रम में व्यावसायिक प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद आपको पता चल सकता है कि आपके पास इनमें से कई गुण हैं। This course will expose you to business terminology, concept, and current business practices. We will help you establish a viable business vocabulary, foster critical and analytical thinking, and refine your business decision making skill. You will acquire these skills by the reading material, exercise, and research assignment that stimulate today's workplace. यह पाठ्यक्रम आपको व्यापार शब्दावली, अवधारणाओं और वर्तमान व्यवसाय प्रथाओं के लिए उजागर करेगा। हम आपको एक व्यवहार्य व्यवसाय शब्दावली स्थापित करने, महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देने और अपने व्यापार निर्णय लेने के कौशल को परिष्कृत करने में मदद करेंगे। आप इन सामग्रियों का पठन सामग्री, अभ्यास और अनुसंधान असाइनमेंट द्वारा प्राप्त करेंगे जो आज के कार्यस्थल का अनुकरण करते हैं। By delving into the 5 unit of this course, you will fine-tune your direction and choice of career in business. Since your education should help you contribute and compete in the global business environment, we will also focus on multicultural aspect of market and business. चूँकि आपकी शिक्षा को वैश्विक व्यापार वातावरण में योगदान देने और प्रतिस्पर्धा करने में आपकी मदद करनी चाहिए, इसलिए हम आप बाज़ारों और व्यापार के बहुसांस्कृतिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। We will examine how the business model other countries adopt often reflect their most salient characteristic. हम इस बात की जांच करेंगे कि दूसरे देशों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय मॉडल अक्सर अपनी सबसे प्रमुख विशेषताओं को कैसे दर्शाते हैं। यूनिट फर्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस। This unit covers basic concepts which provide a context for business. We explore economic and historical information governments use to make decisions, which provide a foundation for future decision making. यह इकाई बुनियादी अवधारणाओं को शामिल करती है जो व्यापार के लिए एक संदर्भ प्रदान करती है। हम निर्णय लेने के लिए आर्थिक और ऐतिहासिक सूचना सरकारों का उपयोग करते हैं जो भविष्य के निर्णय लेने की नींव प्रदान करती है। You will learn about productivity, the business cycle, the impact of business on society, economics, trend and policies, and element of global business. We will examine the financial meltdown of 2008, including the government bailout of AIG and General Motors and the collapse of Lehman Brothers, which provide teachable moments in economic policy and business cycles. आप उत्पादकता, व्यापार चक्र, समाज पर व्यापार के प्रभाव, आर्थिक रुझानों और नीतियों और वैश्विक व्यापार के तत्वों के बारे में जानेंगे। हम 2008 के वित्तीय मंदी की जांच करेंगे जिसमें AIG और जनरल मोटर्स की सरकारी खैरात और लेहमन ब्रदर्स का पतन शामिल है जो आर्थिक नीति और व्यापार चक्रों में उपलब्ध होने वाले क्षणों को प्रदान करते हैं। Completing this unit should take you approximately 60 hours. Upon successful completion of this unit, you will be able to इस इकाई को पूरा करने के लिए लगभग 16 घंटे लगेंगे। इस इकाई के सफल समापन पर आप निम्न कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। आइडेंटिफाई फाउंडेशन, बेसिक प्रैक्टिसेस, डिस्क्राइब इकोनॉमिक्स इंडिकेटर, आइडेंटिफाई positive and negative impact of business on society,
use economic indicators to describe the state and health of an economy। मूलभूत व्यावसायिक प्रथाओं की पहचान करना, आर्थिक संकेतकों का वर्णन करें, समाज पर व्यापार के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की पहचान करना, एक अर्थव्यवस्था की स्थिति और स्वास्थ्य का वर्णन करने के लिए आर्थिक संकेतकों का उपयोग करें। Identify and explain current economic trends। Identify the four phases of the business cycle in real life situations। वर्तमान आर्थिक रुझानों की पहचान और व्याख्या करना, वास्तविक जीवन की स्थितियों में व्यापार चक्र के 4 चरणों की पहचान करें। यूज इकोनॉमिक इंडिकेटर टू प्रिडिक्ट वेयर ए बिजनेस इज heading in the business cycle। Describe global trade restrictions। Identify factors affecting the success of business। Evaluate the feasibility of doing business in a foreign country। Describe method for business entry into the global market and identify trade facilitators। यह अनुमान लगाने के लिए आर्थिक संकेतक का उपयोग करें कि कोई व्यवसाय चक्र में कहाँ है। वैश्विक व्यापार प्रतिबंधों का वर्णन करें। व्यवसायों की सफलता को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना। एक विदेशी देश में व्यापार करने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन। वैश्विक व्यापार में व्यापार के प्रवेश के लिए विधियों का वर्णन तथा ट्रेड फैसिलिटेटर की पहचान करें। व्हाट इज ए बिजनेस। सेक्शन फर्स्ट। द गोल ऑफ ए बिजनेस। The primary purpose of a business is to maximize profit for its owner or stakeholders while maintaining corporate social responsibility। Learning objective। Differentiate among potential goal of a business। Key points। Economic value added suggests that a practical challenge for a business is a balancing the interest of parties affected by business interests that are sometimes in conflict with one another। जोड़ा गया आर्थिक मूल्य बताता है कि एक व्यवसाय के लिए एक प्रमुख चुनौती व्यापार से प्रभावित पार्टियों के हितों को संतुलित कर रही है। ऐसे हित जो कभी कभी एक दूसरे के साथ संघर्ष में होते हैं। Alternate definition state that a business principal purpose is to serve the interest of a larger group stakeholders इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़, कस्टमर एंड इवन सोसाइटी एज ए होल। वैकल्पिक परिभाषा में कहा गया है कि व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारियों, ग्राहकों और यहाँ तक कि समाज सहित हितधारकों के एक बड़े समूह के हितों की सेवा करना है। Many observers hold that concepts such as economic value added are useful in balancing profit making objective with other ends। कई पर्यवेक्षक मानते हैं कि आर्थिक मूल्य वर्धित अवधारणाएं दूसरे छोरों के साथ लाभ कमाने के उद्देश्यों को संतुलित करने में उपयोगी हैं। सोशल प्रोग्रेस इज एन इमर्जिंग थीम फॉर बिजनेस। इट इज़ इंट्रीगल फॉर बिजनेसेस टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक प्रगति व्यवसायों के लिए एक उभरती हुई थीम है। ये व्यवसायों के लिए सामाजिक जिम्मेदारी के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए अभिन्न है। कुछ टर्म्स यूज किए जाएंगे इसमें, जैसे कि स्टेक होल्डर, ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विद ए लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन ए गिवन सिचुएशन, एक्शन और एंटरप्राइज। मतलब ये हितधारक किसी व्यक्ति या संगठन को किसी दिए गए स्थिति, कार्रवाई या उद्यम में एक वैध हित के साथ। सेकेंड, कॉरपोरेशन, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स created by law or under authority of law, having a continuous existence independent of the existence of its member, and power and liabilities distinct from those of its member। व्यक्तियों का एक समूह जो कानून द्वारा या कानून के अधिकार के तहत बनाया गया है, उसके सदस्यों की मौजूदगी से स्वतंत्र एक निरंतर अस्तित्व है और इसके सदस्यों से अलग शक्तियाँ और देनदारियाँ हैं। Corporate social responsibility (CSR) a company's sense of responsibility toward the community and environment, both ecological and social, in which it operates।
Companies express these citizenship first through their waste and pollution reduction process, second by controlling educational and social program, and third by earning adequate return on the employed resources. कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कंपनी का समुदाय और पर्यावरण दोनों पारिस्थितिकी और सामाजिक के प्रति जिम्मेदारी की भावना जिसमें वह काम करता है। कंपनियों इस नागरिकता को अपने अपशिष्ट और प्रदूषण में कमी प्रक्रिया करके के माध्यम से शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों में योगदान देकर व्यक्त करती हैं और नियोजित संसाधनों पर कार्य पर्याप्त लाभ कमाती हैं। एग्जाम्पल्स: अमेरिका हैज़ surpassed Europe in revenue growth over time. However, social responsibility may also have a critical role in business operations. So, American revenue growth should not be solely considered in corporate success. उदाहरण: अमेरिका ने समय के साथ राजस्व वृद्धि में यूरोप को पीछे छोड़ दिया। हालांकि व्यावसायिक कार्यों में सामाजिक जिम्मेदारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए अमेरिका केवल कॉरपोरेट सफलता में नहीं माना जाना चाहिए। स्टेक होल्डर थ्योरिस्ट बिलीव दैट पीपल हु हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट। हितधारक सिद्धांतकारों का मानना है कि जिन लोगों के व्यवसाय में वैध हित होते हैं, इन्हें बिजनेस शुड इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशन, कंज्यूमर्स एंड even community members who could be affected by what the business does ought to have some voice in the decision making. उन्हें इसके संचालन को प्रभावित करना चाहिए। उपभोक्ता और यहाँ तक कि समुदाय के सदस्य जो कि व्यापार से प्रभावित हो सकते हैं को निर्णय लेने में कुछ आवाज़ उठानी चाहिए। Advocate of business contract theory believe that a business is a community of participants organized around a common purpose. Contract theorists see the enterprise being run by employees and managers as a kind of representative democracy. व्यापार अनुबंध सिद्धांत के अधिवक्ताओं का मानना है कि एक व्यवसाय का सामान्य उद्देश्य के आसपास आयोजित प्रतिभागियों का समुदाय है। अनुबंध सिद्धांतकारों ने कर्मचारियों और प्रबंधकों द्वारा एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में चलाए जा रहे उद्यम को देखा।